कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू आर ट्राइंग टू fight this pandemic situation. Students, as you know that you are staying at your home and you're trying to follow each and every protocols which are given by the government of India or government of Uttar Pradesh or any of the government where you residing now. But students, in the online classes you have to be focused on the particular topic which is delivering by the concerned teacher or concerned person, right? So my motto is that I will try to give the concept in easiest way so that you can try to understand each and everything in a good manner, right? No need to watch any other videos, just watch my video so that you can have the best understanding about any of the topic which is right now delivering with you. So with this, let me introduce myself. I am your information technology teacher and I am here to give you the most important concept based on object oriented programming. Students, as you know that from today, from this video, I am announcing that you will get the series of videos based on object oriented programming. आप इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सीरीज आप देखने वाले हैं। आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। जो भी टॉपिक है वो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बताने की कोशिश की जाएगी। सो किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, ठीक है? इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें से पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं क्लास डिजाइन, ठीक है? कि which are the methods, which are the ways through which you are going to create your class. Okay, so right now before starting the detail of this class, first of all we are going to have the some kind of details about the topic which will be covered in the this video and what we will going to study in the upcoming videos, right? This is the class design part 1. This is the class design part 1. Okay students, and in this we will try to focus on three things. We will try to focus on three things. First one, constructor. First one is constructor. That's a very important topic. After the constructor we are going to have access modifier, and once the access modifier is finished we will have getter and setter methods, right? Getter and setter methods. So in the constructor topic, if you talk about the topic constructor, in this we'll try to understand that the constructor is where it will be used, how it will be used, what are the concept behind the constructor, right? We'll focus on details of constructor, right, in this video, okay? And in the next part we're going to cover these two, access modifier and getter and setter methods. जैसे कि आप कंस्ट्रक्टर जानते ही हैं आप कि कंस्ट्रक्टर में जब आप क्लास डिफाइन करते हैं आपने क्या किया, एक क्लास लिखा, क्लास का नाम रखा आपने, सपोज करिए आपने लिखा क्लास का नाम कॉमन, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। अब इसी कर्ली ब्रैकेट के बीच में अब आपको डेटा मेंबर आपको लिखना है,
इसी के अंदर आपको लिखना है डेटा मेंबर, फिर इसके बाद आपको लिखना है मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है। और जब ये दोनों डिक्लेयर हो जाएंगे तो डिक्लेयर होने के बाद इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर इन दोनों चीजों को एक्सेस करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के लिए। और कंस्ट्रक्टर में जो सबसे मेन बात होती है, जो नाम आप क्लास का दे रहे हैं वही नाम आपका कंस्ट्रक्टर का भी होगा। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको अभी कुछ सेकंड्स में ही आपको मैं एलोबरेट करने वाला हूं, तो किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा आप, ओके। अच्छा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर और गेटर सेटर मेथड के बारे में जानेंगे। एक्सेस मॉडिफायर में आपको पता ही होगा पहले से ही कि यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड C++ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर C++ का कॉन्सेप्ट है। और इस C++ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम प्राइवेट, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जोर देंगे यहाँ पर कि अगर हम क्लास के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहें प्राइवेटली तो कैसे करेंगे, क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पब्लिक क्यों लिखते हैं, प्राइवेट क्यों लिखते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। गेटर सेटर मेथड में क्या होता है कि अगर आपने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया और आप चाहते हैं किसी को ऑथराइज करना, किसी मेथड को ऑथराइज करना कि वो उस मेथड को एक्सेस करे, वो उस मेथड को एक्सेस करे, तो आप इस तरह की ऑथराइजेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको गेटर सेटर मेथड का यूज करना पड़ता है। सो हम इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे, ओके। सो अब मैं आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूं मैं, और वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल आपको पता चलेगा। So without wasting any of the time, let's come to my laptop so that you can have the detailed elaboration about the same. Okay, please come. Now I'm going to start the class. As you know that in today's class we need to finish an most important topic in Java programming, right? So what topic is going to finish? Let's see. I'm just opening one file here. Okay, as you see that right now we have to focus on one topic, that is your class design. How we are going to design your class, and inside the class design there are three topics: constructor, access modifier, getter and setter methods, right? So we'll try to understand these three things, okay, in two parts. Today we're going to have the first part, and in this we'll try to understand only and only one topic, that is your constructor. We'll understand the constructor in detail, okay. You don't worry about it, we'll understand the constructor in detail, okay. I will give you the practical demonstration of the same also, so don't be worry about it, right? So let's start our the details about the constructor, right? So for this I'm just going to open one of the your ebook so that you can have some kind of theory portion, and then we'll cover it. Let's close this. Now this is your topic, right? So let me scroll up so that you can have the view of the class design. See, this is the content which we have to understand here, right? So in this, first of all, while declaring the class, first of all you are going to write the class keyword, okay, and followed by the class name, right? This is the first point you have to remember, right? Let me highlight the sentence what I'm going to give you about that, okay. This is the thing, right? So the class in Java begins with the keyword class name followed by class, right? So let me say one more time. पहले आपने क्लास कीवर्ड को लिखा, उसके जस्ट बाद आपने क्लास का नाम लिखा, ये पहले से आपको ये बात पता है। ये उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे आप, राइट? सो सेकेंड पॉइंट विल बी द बॉडी ऑफ द क्लास is enclosed within the curly brackets, right? Now what the class consists of? Class consists of only two things: number one, data member, and number two, member function,
right? So when you talk about the data member means whatever the data you're going to declare inside the class, that is called data member. And what are the actions, what are the things are going to perform with the help of the data member. Okay, so what steps you are going to write inside the methods, okay, that is called data member. So member function, I mean to say member function. Okay, now students, let's talk about the things which are written on the screen. See, the data member are defined by specifying their type, and the method member of the class are defined just like a user defined method, right? कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने डेटा मेंबर को लिखेंगे तो उसके डेटा टाइप्स को बताएंगे। जैसे आपने लिखा इंट ए, तो इंट ए क्या है? ए एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, ठीक है, तो डेटा टाइप में बता रहे हैं आप। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब मेथड्स बताएंगे आप, तो मेथड्स बिल्कुल यूज़र डिफाइंड मेथड्स की तरह है, जिसमें आप केवल मेथड का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को लिख देते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ये सारा काम हम मेन फंक्शन से पहले कर रहे हैं हम, इसलिए जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो सब वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स कहे जाएंगे, और हम बाद में हम उन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस भी करेंगे, राइट। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास आर लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट, दे कैन बी एक्सेस बाय ऑल मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास। मतलब ये हुआ कि जो आपने मेथड्स मेंबर आपने बनाए हैं, जो फंक्शंस आपने बनाए हैं, उन्हीं की हेल्प से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ अब। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा छोटा सा एग्जांपल ये। So students, in this example, as you know that right now we have declared a class, the name of the class is book, right? And inside the class we have declared some kind of string variables, and one is double, right? So string title, this is the one kind of data member. You can say instant variables, or string author, string publisher, string genre, and double. These all are the data members of the class, right? And this is the way to create the data member. Okay, now if you want to give the name of the methods, how can you do that? First of all, you have written void display, means any name of your function, any name of your methods, and inside the method you have written the instructions. Likewise, in the here the instruction is to print the name of the title, author, publisher, right? So right now these two things are involved here to have the class design, right? I hope students you are able to understand each and everything what I am trying to give you. केवल आपको इतना ही समझना है यहाँ पर कि क्लास की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, और ये देखा जाए बताने की ज़रूरत नहीं थी। रीज़न क्योंकि आप प्रीवियस वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को आप कर चुके हो, देख चुके हो आप, राइट। चलिए, अब इसके बाद अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आने जा रहे हैं वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, चलिए देखते हैं। अ डेटा मेंबर दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजिंग इज असाइंड अ डिफॉल्ट वैल्यू बाय द कंपाइलर यूजिंग यूजुअली आइदर 0 और नल। सबसे पहले मैं आपको पहली लाइन का मतलब आपको बता दूं आपको मैं कि ये पहली लाइन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। देखिए, थोड़ा सा ये थ्योरी पोर्शन है, और अभी बिल्कुल कुछ ही मिनट में आपको मैं एक एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको मैं। सो आपको ये समझना है यहाँ पर कि डेटा जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो है क्या ये। सो कंस्ट्रक्टर में क्या है कि आप देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया फंक्शन, एक मेथड बनाया। जब हम उस मेथड को बनाएंगे या उस
किसी डेटा मेंबर को हमने बनाया और वो जो है अपने आप तो इनिशियलाइज होगा नहीं, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो इनिशियलाइज ना करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाइलर है उन वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को दे देगा। जैसे अगर आपने नंबर लिया या फिर आपने डबल डेटा टाइप लिया तो वो जो डबल डेटा टाइप है उसको यहाँ पर 0 असाइन कर देगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग को वहाँ पर क्या से ना नल वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज आप अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस जब आप करें, जब आप स्किल्स को इन्हेंस कर रहे हैं आप, तो उस समय आप ये चीज़ ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो डिक्लेरेशन होने के बाद इनिशियलाइजेशन ज़रूर हो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये बताया गया कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि इनिशियलाइज ना करना, सो अब हम इसी प्रॉब्लम को दूर करेंगे इस टॉपिक में, जो कि नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पर क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन का डेटा मेंबर्स जो आपने बना रखे हैं क्लास के लिए उसका इनिशियलाइजेशन कर देगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है। स्पेशल मेथड मेंबर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, और एनी अदर इनिशियलाइजेशन इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फंक्शन है जो आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, जो आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखना चाहिए आपको। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर में जो पहला पॉइंट जो हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम, जो आप क्लास का नाम देंगे वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, ये कुछ भी रिटर्न, कंस्ट्रक्टर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ पर वॉइड जो हमारा कीवर्ड है इसको भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, कंस्ट्रक्टर मे और मे नॉट बी पैरामीटर लिस्ट, मे नॉट है, मतलब जब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट्स को या पैरामीटर्स को पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्लास हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटा सा एक प्रोग्राम है, ये उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा विजिबल ज़रूर होगा ये। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने बुक नाम से आपने एक क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ आपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया। डेटा मेंबर जब इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज होने के बाद अब आप नीचे की तरफ देखिए, बुक नाम से एक आपका बनाया गया है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर। देखिए क्लास का नाम बुक है और इसका भी नाम बुक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आप बुक के बाद छोटा सा ब्रैकेट लगा, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, उस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं, जैसे स्ट्रिंग टी, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग आपका कुछ और भी लिखा हुआ है, डबल पी, ठीक है, एंड स्ट्रिंग जी और स्ट्रिंग पी। ठीक है, ये इस तरह करके कुछ पैरामीटर्स पास किए गए हैं। अब चूंकि हमें इनिशियलाइजेशन यहाँ पर करना दिखाना है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, टाइटल इक्वल टू टी, ऑथर इक्वल टू ए, जो आपने वहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, आपने जो पास किए हैं एज ए आर्गूमेंट, उनको आप लिखेंगे। पब्लिशर इक्वल टू पी, जनवरी इक्वल टू जी एंड प्राइस इक्वल टू पी, और सबके आगे सेमीकोलन लगाते जाइए और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और याद रहे ये आप काम करेंगे मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे आप। ठीक है, सो अब आपका यहाँ पर डेटा मेंबर हो गया, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया आपने। अब हमें जो सीखना है यहाँ पर कि किस तरीके से इस डेटा मेंबर को या कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करें यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ और आपको बताएंगे यहाँ पर कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो 2 तरीके का होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्टर जो होता है 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक मैं नोटपैड आपके लिए ओपन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कंस्ट्रक्टर 2 तरीके का है। नंबर 1, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर,
और दूसरा हमारा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये दो तरीके कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का जो एग्जांपल होगा, जैसे मान लिखे मैंने डिस्प्ले लिखा और डिस्प्ले के बाद ऐसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये आपका एग्जांपल हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा डिस्प्ले और यहाँ लिख दिया मैंने इंट ए कॉमा इंट बी ब्रैकेट क्लोज, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक और कंस्ट्रक्टर हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये आपका C++ में यूज़ होता है। और एक टॉपिक और है आपका जो कि हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ये जो डिस्ट्रक्टर है ये भी आपका C++ में यूज़ होता है, जावा में नहीं यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अलावा जो डिस्ट्रक्टर है ये दोनों ही चीज़ें आपका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक इक्वल टू बुक वन। बुक वन क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि सारा काम आपने कर लिया है। डेटा मेंबर हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए, मेथड्स हो गए, सब आपने डिक्लेयर कर लिया। आपने एक न्यू यहाँ पर एक ऑपरेटर को लिया और यहाँ लिख दिया आपने बुक, और बुक के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपने पास कर दी। यहाँ पर बुक के अंदर आपने इतनी सारी चीज़ें पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने इतनी सारी चीज़ें पास की हैं आपने, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब को आपने पैरामीटर्स की तरह आपने पास किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन सब चीज़ों को ना लिखूँ यहाँ पर तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। लेकिन अभी आपने ये जो बुक को देख रहे हैं, बुक ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पर। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर इन सब चीज़ों को, यानी कि ये जो आपका डबल कोटेशन से लेकर लास्ट में जो 450 तक लिखा हुआ है, इसको अगर मैं हटा दूँ, अगर हटाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही रहेगा। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं आप, तो क्रिएशन करने के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑलवेज आप यूज़ करते हैं आप। ठीक है, इन चीज़ों को हम अभी प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आप इसको बिल्कुल देखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हम प्रोग्राम में पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए न्यू आपको पता ही होगा। न्यू एक ऐसा आपका ऑपरेटर है जिससे कि मेमोरी एलोकेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, क्लास मेंबर के लिए जो आपका डेटा मेंबर क्रिएट किया है आपने। चलिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ अब मैं। चलिए देखिए यहाँ पर जब आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, क्या ऑब्जेक्ट का नाम है बुक वन। अब हम बुक वन की हेल्प से यहाँ पर अपने जो मेंबर्स हैं उनको या फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जावा नेटबीन्स के स्क्रीन पे आने वाला हूँ मैं, और वहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारी नेटबीन की स्क्रीन है और इस नेटबीन की स्क्रीन पर यहाँ मैंने छोटा सा आपके लिए प्रोग्राम बना रखा है आपके लिए। ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम है ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने क्लास बनाया। क्लास का नाम क्या है बुक। क्लास का नाम क्या है बुक। अब इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल लास्ट में, क्लास का जो आपका ओपन किया है वो सबसे लास्ट पे बंद होगा, और इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम अपने डेटा मेंबर्स को, अपने जो हमारे मेंबर्स फंक्शंस हैं उनको हम डिक्लेयर करते जाएंगे। कैसे देखिए अब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिक्लेयर सम इंस्टेंस वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर, डबल प्राइस। ओके, now this is the data members, or you can say a string variables or double variables. Now I'm going to create one of the default default constructor here, right? So default constructor जो होगा, ठीक है, वो default constructor जो होगा वो आपने यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले कर दिया आपने। ठीक है, ये आपने इस तरह से डिफॉल्ट आपने कर दिया। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आप,
कि डिस्प्ले लिखा है आपने, डिस्प्ले के अंदर कुछ जो चीज़ आपको प्रिंट कराना है वो चीज़ आपने लिख दिया है। अब आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो जब आप यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये एक कंस्ट्रक्टर है, ना कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैंने आपको पहले बताया था, पहचानेंगे कैसे कि ये कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। जो नाम क्लास का है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लिखा है, डिस्प्ले एक सिंपल यूज़र डिफाइंड मेथड है। ये डिस्प्ले क्या है? एक सिंपल यूज़र डिफाइंड मेथड है, और यूज़र डिफाइंड मेथड के आगे हम वॉइड कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हमने यहाँ पर वॉइड कीवर्ड को यूज़ किया एज ए यूज़र डिफाइंड मेथड, जो इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहें यहाँ पे हम दे सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इतने पोर्शन में केवल आपने क्लास डिज़ाइनिंग सीखी है, आपने केवल 2 चीज़ें। एक देखा आपने कि किस तरीके से आपने यहाँ पर जो डेटा मेंबर है वो, और किस तरह से मेथड्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इतना होने के बाद यहाँ पर इतना होने के बाद अब यहाँ पर जो आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया है आपने। मेन फंक्शन में ये तो आपका पता ही है, एक्सेस मॉडिफायर है आपका, आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आपका स्टैटिक आपका होगा, कीवर्ड है ये, वॉइड आपका रिटर्न टाइप है, मेन आपका मेथड का नाम है, स्ट्रिंग आपका एरे है आपका ये, ठीक है। एरे का नाम आपका args है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में, इस लाइन के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब आपने देखिए सबसे मेन लाइन देखिए, यहाँ पर सबसे मेन लाइन ये है। आपने पहले क्या किया, एक आपने लिखा बुक, जो कि आपका एक नेम है आपका, और उसका ऑब्जेक्ट आपने लिखा, यहाँ पर क्लास का नेम लिखने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा बुक 1 इक्वल टू न्यू, और उसके बाद लिखा बुक। तो ये जो आप देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम बुक है, और यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो उसका भी नाम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है, अब हम इसी ऑब्जेक्ट की मदद से एक एक चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा बुक 1 डॉट टाइटल, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर बुक 1 डॉट ऑथर, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, और बुक 1 डॉट प्राइस कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ये जो फंक्शन है, इस यूजर डिफाइंड मेथड को भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए। तो बुक 1 डॉट डिस्प्ले, बुक 1 डॉट डिस्प्ले, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट की वजह हेल्प से हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ समझा है यहाँ पर कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय यूज़ करते ही करते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रन करते हैं यहाँ पर। अब हम वेट करते हैं रिजल्ट का। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, टाइटल इज बिगिनर्स ऑफ जावा, ठीक है। यहाँ मैंने जो भी लिखा है यहाँ पर ये ठीक से आ नहीं पाया है ये, ठीक है। ये क्योंकि पहले जो रिजल्ट था वो क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ों से मतलब है, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं क्लोज़ करने पर एक बार और आपको रन करके दिखा देता हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। सी, टाइटल नेम आ गया, ऑथर नेम आ गया और प्राइस आ गया। सो स्टूडेंट, अब आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और अब हम जो समझने वाले हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं हम, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इन चीज़ों को मैं पहले हाइड करने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं हाइड कर देता हूँ पहले। ये हाइड कर दिया, ठीक है। अब हाइड करने के बाद अब मैं इतने प्रोग्राम को रन करूँगा और रन करके दिखाऊंगा कि क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए, अब आपको मैंने यहाँ पे ये बताना चाहे यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर प्रिंट तो हो रहा है लेकिन सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, नल हो गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा,
तो ये सारा काम किया ये किसने, कंपाइलर ने किया, ये सारा काम कंपाइलर ने किया ये। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हम पास कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्लेयर्ड वेरिएबल। जैसे हमारा जो टाइटल था, टाइटल कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, द बिगिनर्स ऑफ जावा, फिर एक सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद अब आप यहाँ लिख सकते हैं ऑथर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे कोई भी राइटर लिख दिया मैंने, डी रविचंद्रन, कॉमा, और प्राइस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखेंगे अब कि क्या क्या इसमें एरर्स आ रही हैं, कैसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो पास कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर मेन से पहले एक आपको डिफाइन करना है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो होगा बुक, बुक के बाद मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया। अब इस पैरेंथेसिस में यहाँ पर जो लिखेंगे, जो वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे हम, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन कराना है। सो फॉर डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन यू हैव टू राइट write the parameters here like this, string t and then string a, and write here double, and then after writing I have written here, so T for title, A for author, P for price, right? And after that I'm going to use the curly brackets here. Okay, so inside the curly bracket I have to write like this. टाइटल को मैंने इनिशलाइज कर दिया यहाँ पर, किसके लिए, टी के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ऑथर हैं, ऑथर को मैंने इनिशलाइज कर दिया किसके लिए, यहाँ पर ये हो गया ए के लिए। फिर इसके बाद जो हमारा प्राइस है, प्राइस को हमने इनिशलाइज कर दिया यहाँ पर पी के लिए, सेमीकोलन, ठीक है। अब आप देखिए पूरा प्रोग्राम हमारा रेडी है ये, और इस पूरे प्रोग्राम में अब आपको यहाँ पर हर चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए ये रहा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इस समय, यहाँ पर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर डिफाइन कर रखा है, तो आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जहाँ पर मेमोरी एलोकेशन हो रही है न्यू ऑपरेटर की हेल्प से, वहाँ पर भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करेंगे आप। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, रन करते हैं इसको हम। Just wait for 2 seconds. सी देखिए रिजल्ट बिल्कुल वही आया है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सो ये रहा कॉन्सेप्ट आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, और आपका ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसके अंदर एक चीज़ और मैंने क्लियर की है, वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा अपने उस PDF पे आ चुके हैं, और वहाँ पर जो कुछ कंटेंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और इस स्क्रीन पर अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया प्रोग्राम के ज़रिए कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट को अब आप यूज़ कर रहे हैं अपने मेंबर्स को और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके जो कंस्ट्रक्टर में जो लास्ट टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बुक 1 यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिख करके डॉट लगाएंगे आप, तो ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर लिखने के बाद जैसे ही डॉट लगाएंगे, आपसे उसके बगल में आपको जितने भी आपने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं वो सारे फंक्शंस का नाम आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखिए ऑथर, जनवरी, प्राइस, ये सब आपको अलग से आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। आप स्क्रॉल करके उसको आप चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पर जो प्रोग्राम अभी आपको यहाँ दिया गया है, यही प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है आपको अपने इस जावा नेटबीन्स पे। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये जो सामने आउटपुट दिख रहा है, कुछ ऐसा ही आउटपुट आपने अपने जावा नेटबीन्स पे आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो ये जो आपने जितना कुछ समझा आपने यहाँ पर केवल और केवल कंस्ट्रक्टर को ही आपने समझा. So students, now it's time to have a practice at your home, practice by using your mobile, right? Whatever the app I have told you, and whatever the logic creation is in. So whatever the practice you have done at your home, whatever the time you are spending on the programming, that will enhance your skill, enhance your programming skill. Okay students, so now students, it's time to end this video. Okay, we'll meet in next video for the rest of the topics. Okay. Okay students, I am damn sure that each and everything is now clear. What is constructor? What is the concept behind the constructor? Why we are going to use the constructor? Okay, the answer of many questions is getting answered here in this video, right? So I hope you are very much satisfied to watch this video, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can have the notification of my latest videos also. Okay, and one main thing I just want to say that if you are doing practice at your home, okay, if you found any kind of error, any kind of mistake, try to fight with that error. आप उस एरर के पीछे पड़ जाइए जब तक वो सॉल्व ना हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं. आप जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे आपका लॉजिकल जो स्किल है वो डेवलप होता जाएगा. ठीक है, इसी बीच के साथ अब मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग द अदर वीडियोज. तो थैंक्स अगेन.